Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, from the last video, we have started third chapter in the Hornbill, that is discovering that the saga continues. And in the first part, I have talked about the various points regarding these articles that has opened all the things that were supposed to us to know before reading this article. We have read the background of Tut family, who was his grandfather and at what age he became the king. Everything we had seen, and हम लोगों ने देखा था कि ये अपने टीनेजर में ही मर गए थे और ये एक उस पावरफुल फैमिली के लास्ट हेयर थे जिसने कि इजिप्ट पे रूल किया था सेंचुरीज तक. And after his death, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. His tomb's discovery was made by Howard Carter in 1922, and after the discovery, speculations have started from various archaeologists in this way or that way about his death, कि उसकी मृत्यु कैसी हुई होगी, वो कैसे मरा होगा, इसके बारे में. और 1922 के बाद 80 इयर्स तक उसको फिर से रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया. अभी अराउंड 83 इयर्स आफ्टर, ऑन 5 जनवरी 2005, हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, ये 5 जनवरी 2005 को जो उनकी डेड बॉडी को अगेन निकाला गया और उनकी डेड बॉडी को सीटी स्कैन किया गया. और ये काम कौन कर रहे हैं? ये जाही हवास साहब कर रहे हैं, who is Secretary General of Egypt's Council of Antiquities. So आज हम लोग जो स्टोरी जो आर्टिकल कंटिन्यू करेंगे वो है an account that has taken place on 5th January 2005. हम आपको ट्रांसपोर्ट करते, I'm going to transport you to the Egypt, the land of pyramids, in the Valley of Kings, where Jahi Hawass is taking out the mummy of Tut again from the pyramid for the purpose of CT scanning. Okay, so let's continue. Open your book on page number 23. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. So, a fast, strange and unnatural wind was blowing. उस दिन बहुत ही तेज, स्ट्रेंज और अननेचुरल विंड ब्लो कर रही थी एज किंग तुत्स बॉडी वॉज टेकन फ्रॉम हिज ग्रेव कॉल्ड वैलीज ऑफ द किंग्स. वैलीज ऑफ द किंग्स में उनकी ग्रेव से उनकी बॉडी को जिस दिन निकाला जा रहा था, उस दिन बहुत ही तेज, स्ट्रेंज और अननेचुरल जो है विंड चल रही थी. Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day. One thing more,
has happened, uh, that dark clouds moved quickly across the desert all day long and later. पूरे दिन डार्क क्लाउड्स जो है पूरे डिजर्ट की स्काई में घूम रहे थे। अच्छा, एक बात और है, जो एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री है, अगर हम लोकेशन की बात करें वैली ऑफ किंग्स को, तो अगर आप लोग बुक में देखें अपने हॉर्नबिल बुक में, तो उसमें एक पेज पे पूरा मैप दिया हुआ है, मैप हैव बीन गिवन, यू कैन गो थ्रू दैट। तो डार्क बेलिड क्लाउड्स और क्या था, एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे, और अभी शाम का समय हो गया, नाउ इट इज इवनिंग। सो इवनिंग में जो है वोन क्लाउड्स ने स्टार्स को कवर कर रखा है, आई मीन स्टार्स आर नॉट विजिबल। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ओके, ये जो इवेंट है जो हो रहा है ये 5 जनवरी 2005 को हो रहा है। समय है शाम के 6 बजे। इट इज़ 6 PM। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. So, here on January 5th, 2005 at 6 PM, King Tut's mummy, which is the world's most famous mummy, was placed in the CT scanner to investigate the mystery behind his death, which had occurred more than 3,300 years ago. यहाँ पर जो है 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे किंग तुत की ममी को, जो कि वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी है, उसको CT स्कैनर में रखा गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए कि आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई थी 3300 साल पहले। सो ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. All afternoon tourists visited the 26 feet deep underground rock tomb to pay respect to the king. पूरे दोपहर से पूरे विश्व के जो टूरिस्ट थे वो उस 26 फीट गहरी अंडरग्राउंड रॉक का टूम में उस किंग को रिस्पेक्ट पे करने के लिए आते रहे थे। एंड दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पीयर्ड एट तुत्स गिल्डेड फेस। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो जो म्यूरल्स थे वहाँ पे जो ब्यूरियल चैम्बर था, ब्यूरियल चैम्बर के वॉल्स पे म्यूरल पेंटिंग्स बनी हुई थी, उन पेंटिंग्स को देख के उनको देख रहे थे। एंड पीयर्ड एट तुत्स गिल्डेड फेस, और तुत के गिल्डेड फेस, गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद गोल्ड, ओके, सोने से जो है कवर किए हुए फेस को देख रहे थे। सो मेनी पीपल स्टफ्ड इनटू द स्मॉल टूम एंड लुक्ड इन एडमिरेशन एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द चैम्बर। ओके, जो म्यूरल्स थे उसको एडमिरेशन के साथ देख रहे थे। एंड टुक अ लुक एट द फेस ऑफ तुत, और वो लोग तुत के फेस को देख रहे थे, दैट हैड बीन पेंटेड विद गोल्ड और कवर्ड विद गोल्ड। सो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, क्योंकि वो जो गिल्डेड फेस था, दैट गिल्डेड फेस वॉज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, उस ममी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर ये था। Others stood silently. Some visitors read from guidebooks in a whisper,
So there were some visitors who were reading the guidebooks in a hushed tone, while others stood silently. वहीं पे कुछ और लोग थे जो साइलेंटली खड़े थे. Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. शायद वो जो है तुत के टूम्ब के जो उनकी जो अनटाइमली डेथ थी उस पे पॉन्डरिंग कर रहे होंगे, उस पे अपना ओपिनियन दे रहे होंगे या कुछ सोच रहे होंगे. एंड और वॉन्डरिंग विथ अ शिवर इफ द pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. और वहीं पे कुछ और लोग होंगे, शायद वो पॉन्डरिंग कर रहे होंगे या वंडर कर रहे होंगे फ़ाराओ के कर्स को लेकर के. हम लोगों ने पिछली क्लास में जब बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उसमें फ़ाराओ के कर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक कर्स था जो वहाँ पे लिखा गया था और उसका मेन मोटो सिर्फ ये था कि इनकी डेड बॉडी को या इनकी मम्मी को या इनके पिरामिड को, इनके टूम्ब को कोई रॉबर या कोई पॉलिटिकल एनिमीज़ डिसरप्ट न करें. इसलिए लिखा हुआ था वहाँ पे कि डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम. ये कहा गया था कि जो कोई भी इनके जो है इटर्नल स्लीप से जहाँ पर ही इनकी दफनाया गया है उससे इनको डिस्टर्ब करेगा, या तो उसको डेथ का सामना करना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर मिसफॉर्चून्स फॉल करेंगे. तो दे वर थिंकिंग वेदर it was really true or not. So the mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. As Jahi Hawass, Secretary General of Egypt, leaned over the body to have a look, जब वो जो है बॉडी पे लीन किए इसको देखने के लिए, उन्होंने कहा कि द ममी वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. बताया कि जो ममी थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी. एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉज द एक्शंस ऑफ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर, जो उन्होंने 1920s में किया था. 1922 में जब उन्होंने डिस्कवरी किया था. तो हम आपको बता दें एक बात यहाँ पर बहुत ही स्टार्टलिंग है, वो ये कि उस समय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का या फिर इन डेड बॉडीज़ को खोजने का, इनको निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटो होता था कि वो जो सोना है, जो रिचेस है, जो इनके साथ दफन किया गया है उनको निकालना. उनका मोन मोटो स्टडी करना या जानना नहीं होता था. तो इनकी डेड बॉडीज़ को निकाला गया और जो भी सामान थे उनको निकाला गया, गोल्ड निकाला गया, क्योंकि जो गोल्ड ये लोग इजिप्ट की गवर्नमेंट को जमा करते आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसका 10% ये जो लोग डीलिंग करते हैं उनको मिलता है. तो इसलिए मिस्टर कार्टर ने जो कुछ किया इस डेड बॉडी के साथ, इसके साथ जो रिचेस थी उनसे उसको निकालने के लिए उसने डेड बॉडीज़ को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया है. ओके, बहुत ही बैड कंडीशन में है वो डेड बॉडी. दिस वॉज टोल्ड ओके एज ही डिस्कवर्ड किंग तुत्स टॉम्ब इन 1922 आफ्टर अ लॉन्ग सर्च. बताया है मैंने आपको पिछली क्लास में कि बहुत लंबी 15 साल तक सर्च करते रहे वो किंग तुत की डेड बॉडी को, और उसका मेन मोटो यही था, मेन चीज़ यही था. उनको पता था कि मिस्टर तुत की बॉडी ढेर सारी सोने के साथ दफन की गई है और उस सोने को पाना ही उनका मेन मोटो था. सो उन्होंने मिस्टर हावर्ड कार्टर ने ममी को बहुत ही बैड कंडीशन में छोड़ा था.
who in 1922 discovered Tutstum after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. मिस्टर जाही हवास ने बताया कि इसके जो कंटेंट्स हैं, यद्यपि इट वाज रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, जल्दबाजी में किया गया है, उनके साथ उनके डेड बॉडीज से जो सामान था वो निकाला गया और उनकी वो सब कुछ जल्दबाजी में किया गया, लेकिन सब कुछ कंप्लीट है. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द pharaoh's लेजेंड. वो जो रिचेस थे, आई मीन जो कलेक्शन था, जो कंटेंट्स थे, जो कि मिले थे मिस्टर हावर्ड कार्टर को मिस्टर तुत की डिस्कवरी के बाद, वो जो था वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था जो कि कभी पाया गया था, और अब वो फ़ैराओ का लेजेंड का पार्ट है. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड जो उस समय मिला था, उसमें स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड के, और दियर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन. ओके, उसका जो इटर्नल ब्रिलियंस है वो रिसरेक्शन को गारंटी करता है. ओके, रिसरेक्शन मीन रेस्टोरेशन टू लाइफ. दैट कॉज सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी. मिस्टर हावर्ड कार्टर की उस डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजी के फील्ड में, डिस्कवरी के फील्ड में सेंसेशन क्रिएट किया था, और वो डिस्कवरी आज भी इवन टुडे स्टिल गेट्स द मोस्ट अटेंशन. बट तुत वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स. लेकिन तुत को ढेर सारी एवरीडे थिंग्स के साथ भी दफनाया गया था, जो कि उन्हें, माने कि जो इजिप्शियन को लगता था कि आफ्टर लाइफ इनके जो किंग हैं वो यूज़ करेंगे, उन सब चीज़ों के साथ इनको दफन किया गया था. बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, everything was kept over there. Okay, such artifacts, Tut was buried with things of daily use like razor made of bronze, games, linen undergarments, boxes of food and wine which he could use in the next life. Everything. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffins. Carter took a few months to record the treasures found on Tut's grave. पता है, तत् के ग्रेव में जो ट्रेजर्स पाए गए थे उनका रिकॉर्ड करने के लिए कार्टर को कई महीने लग गए थे. एंड देन कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री-नेस्टेड कॉफिन्स. उन सारे सामानों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उनकी कैटलॉगिंग करने के बाद, कार्टर ने उनकी थ्री-नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था. ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड एडोर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स. जब उन्होंने पहली कॉफिन खोला था, व्हेन ही ओपन, इन द फर्स्ट कॉफिन, he found a piece of cloth with garlands of willow, olive leaves, wild celery, lotus petals and corn flowers. पहली कॉफिन में उनको एक कपड़े का जो है एक पीस मिला था जिसपे विलो, ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी और लोटस पेटल्स, इन सब से बना हुआ, और सॉरी कॉर्न फ्लावर्स भी था, इन सब से बना हुआ एक गार्लैंड मिला था. ही हैज फाउंड अ गार्लैंड, द फैडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, जो कि एक फैडेड एविडेंस देता है कि इनका जो ब्यूरियल
that must have taken place in the month of March or April. When he finally reached the mummy, और जब वो फाइनली मम्मी से पहुंचे थे, though he ran into trouble. Okay, when he reached the third coffin, he was in trouble. उनको एक दिक्कत सामने आई. The body had hardened due to the resins. दिक्कत क्या थी? The ritual resins had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. Okay, the body had hardened due to the resins which had cemented the body, and it had stuck to the bottom of the coffin which was made of gold. और इनको गोल्ड की बनी हुई वो कॉफिन निकालनी थी, और जो इनकी बॉडी थी उसमें जो रिचुअल रेसिन लगे हुए थे, इतने 3300 ईयर्स की गर्मी के कारण, इतने दिनों से के रहने के कारण ये वहाँ पे कॉफिन में सीमेंटेड हो गए थे, चिपक गए थे, और किसी भी तरीके से no amount of legitimate force could move them. Okay, and it was hardened in this way that no amount of legitimate force could move them out. Carter wrote later that was to be done. Carter wrote ने कहा कि ultimately, बाद में लिखा उन्होंने, the Carter wondered what to do next because no amount of force could separate the two. माने कि वो बहुत परेशान हुए कि इसको कैसे निकाला जाए, किसी भी तरीके से वो निकल ही नहीं रहा था. तो the sun can beat down like a humor this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. So Carter tried to loosen the resins by keeping the body in the hot sun. उन्होंने जो है सोचा कि शायद धूप में रख दे तो जो है धूप की गर्मी से रेसिन शायद ढीली पड़ जाए. तो कार्टर tried to use it to loosen the resins. For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. कार्टर ने इसको रख दिया धूप में, and he kept the mummy in 149 degrees Fahrenheit heat for several hours, but still it remained stuck. फिर भी रेसिन लूज नहीं हुई, चिपकी रही. So nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. He reported that a chisel was to be used to cut down the mummy from the limbs and the trunk so that its body could be taken out of the coffin. ट्रक की बॉडी को कॉफिन से निकाल सके, इसके लिए जो है उन्हें चाइजलिंग करनी पड़ी, छेनी हथौड़ी से उसके जॉइंट्स को तोड़ दिया गया. ओके, आई मीन काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया, तब जाके उनकी बॉडी उस कॉफिन से निकल गई. अगर देखा जाए तो एक तरीके से उन्होंने क्राइम किया था. अब इस क्राइम का के बचाव के रूप में उन्होंने क्या बताया? इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. he did not have much choice to say in his defense. अपने डिफेंस में बताने के लिए उनके पास बहुत कुछ नहीं था. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly could have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा जो है वो दिया कि according to Carter, he had no choice other than to cut the mummy. He believed that if he had not done that, thieves would have removed the gold from the tomb and would have looted it. उनका मानना था कि अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो जो चोर होते हैं, चोर, उसको जो सोना था, जो गोल्ड था,
उसको टूम्ब से निकाल ले जाते और उसको लूट लेते। ओके, सो इन तत्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। तक के समय में, ड्यूरिंग तत्स टाइम, द रॉयल पीपल वर वेरी वेल्दी एंड they could or hoped, all right, and they thought or hoped they could take their riches with them। ऐसा उनका विचार था, ऐसी उनकी सोच थी, या ऐसा वो आशा होप करते थे कि वो अपनी रिचेस को अपने साथ अपनी मृत्यु के बाद ले आ सकते। दिस वॉज देयर थॉट फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड। King Tut was lavished with glittering gold, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sets for his fingers, rings, all right, and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. During this time, the royal people were very wealthy and they had a belief that after death they could take the wealth along with them. For his life after death, he was given precious collars, necklaces with decorative patterns, bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sets for fingers and toes, and now an iconic inner coffin had a mask. इन सब के साथ उनको दफन किया गया था। टू सेपरेट Tut फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, वो जितनी भी एडॉर्नमेंट्स थे उससे उनको अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कार्टर के लोगों ने मम्मी के हेड को अलग कर दिया, मम्मी को जितने भी जॉइंट होते हैं हर जगह से अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार उन्होंने अपना काम कर लिया, फिर उन्होंने उसको रिसेंबल किया, ओके, रीअसेंबल किया। द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड, एक लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी डाल के फिर से रीअसेंबल किया विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर Tut was rest, और उन सब में वहाँ पे रीअसेंबल करके, ओके, आफ्टर द फिनिश्ड, जब सब कुछ निकाल लिया, सारा सोना निकाल लिया, तो उसके बाद आफ्टर द फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में जो रिमेन्स थे उनको जो है पैडिंग फिल्ड विद लेयर ऑफ सैंड के जो है लेयर रख करके उसके लकड़ी के बॉक्स में रख दिया, जिससे कि जो डैमेज है वो छिप जाए। इट वॉज हिज न्यू रेस्टिंग प्लेस, और फिर से उनको उसी रेस्टिंग प्लेस पे रख दिया गया। सो दिस वॉज वॉट हैज हैपेंड 80 years, around 83 years before, in 1922. We shall continue with the chapter in the next class. Thank you. Have a nice day.